قالا کہا خضر علیہ السلام نے علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکا تجھ سے انکا بے شک تو لن تستطیع ہرگز نہیں تو کر سکے گا معیہ میرے ساتھ صبرن صبر۔ جی خضر علیہ السلام نے جب بچے کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ آپ نے ناحق جو ہے وہ ایک بچے کو قتل کر دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ یعنی خضر علیہ السلام نے وہ وعدہ یاد کروایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا آگے سے؟ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان اگر سألتو کا میں پوچھوں آپ سے، سوال کروں آپ سے، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی پس نہ تو مجھے اپنے ساتھ رکھنا، قد تحقیق بلا شبہ یقیناً بلغتا تم تک پہنچ چکی ہے، من لدنی میری طرف سے عذرن عذر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب جو ہے اب اگر میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کے جائیے گا، یہ میرا عذر قبول کریں، بس یہ آخری عذر ہے، یہ قبول کر لیں، ایکسکیوز۔ فن تالقہ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آتا یا وہ دونوں آئے، اہل قریتی بستی والوں کے پاس، نستطعما ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، فابوا پس انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما یہ کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کرے، ان دونوں کی مہمان نوازی کرے۔ جی یہ آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے، دونوں بھوکے تھے اور بھوک لگی ہوئی تھی، تو کھانا مانگا بستی والوں سے۔ تو بستی والوں نے جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے کنجوس سے بندے تھے، وہ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فواجدہ پس ان دونوں نے پایا، فیہا اس میں جدارن ایک دیوار، یریدو چاہتی تھی، ان ینقضا یہ کہ وہ گر جائے، فاقامہ پس انہوں نے اسے سیدھا کر دیا، کھڑا کر دیا اسے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لو شئتا اگر آپ چاہتے، لاتخذتا ضرور آپ لے لیتے، علیہ اس پر اجرن کوئی اجرت۔ جی بستی سے جب باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گری جا رہی ہے، تو خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ دیوار کو جو ہے وہ سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کو جو ہے وہ یعنی دیوار مکمل مضبوط بنا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر پھر اعتراض کر دیا کہ یہ عجیب آپ کی منطق ہے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی گرتی ہوئی دیواریں جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے پھر خضر علیہ السلام نے کیا کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کم سے کم آپ جو ہے انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، تو آپ نے یہ دیوار کھڑی کی ہے اس کی اجرت ہی کم سے کم لے لیتے، وہ آپ نے تو اجرت بھی نہیں لی، یہ عجیب معاملہ ہے آپ کا۔ قالا کہا خضر علیہ السلام نے ہاذا یہ فراق جدائی ہے، ہجر و فراق سے ہے یہ لفظ، بینی میرے درمیان و بینی کا اور آپ کے درمیان تیرے درمیان، سأنبئک کا عنقریب میں بتاؤں گا تجھے، بتأویلی حقیقت اس کی حقیقت، اس کی تعبیر، ما لم تستطیع جس پر نہیں تم کر سکے، علیہ اس پر صبرن صبر۔ اب جو ہے وہ کام مکمل ہو گیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو بار بار منع کر رہا تھا لیکن آپ ہر بار جو ہے وہ سوال کر رہے تھے، تو اب جو ہے اب آپ کا راستہ علیحدہ، میرا راستہ علیحدہ، ہاں البتہ آپ کو جو ہے یہ ان تین واقعات کی تعویل وضاحت میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جس پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ اما السفینہ تو رہی کشتی، فکانت پس تھی وہ، لمساکینہ واسطے چند مسکینوں کے، یعملون عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، فی البحری سمندر میں، فاردت پس میں نے ارادہ کیا، ان اعیبہا یہ کہ اسے عیب دار کر دوں، وکانا اور تھا وراءہم پیچھے ان کے، مالکن ایک بادشاہ، یاخذ وہ لے لیتا تھا، کل سفینۃ ہر ریت کی کشتی، غصباً زبردستی، غصب کر کے۔ یعنی خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو کشتی تھی نا یہ چند مسکین لوگوں کی تھی، ان کا گزر بسر جو ہے وہ اسی کشتی پر ہوتا تھا، مسافر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے، لیکن دوسرے کنارے پر جو بادشاہ تھا نا وہ ہر کشتی جو اچھی تھی اور شاندار تھی، خوبصورت تھی، اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ غصب کر لیتا تھا، اپنے چھین لیتا تھا لوگوں سے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ اس کشتی کا جو ہے وہ ایک ٹکڑا جو ہے یا ایک
लकड़ी का हिस्सा जो है वो मैंने तोड़ दिया ताकि इसको ऐबदार कर दूं, और बादशाह जो है वो इस ऐबदार कश्ती को रोकेगा नहीं, ये वापस कर देगा। इस तरह इन लोगों की, मस्कीन लोगों की कश्ती जो है वो बच जाएगी और वो रोजी रोटी कमाते रहेंगे। व अम्मल गुलामू, और रहा लड़का, फकाना पस थे, अबवाहु उसके वालदैन, उसके माँ बाप, मुमिनैनी दोनों मोमिन थे, फखशीना पस हमें डर हुआ, हमें खौफ हुआ, अयुरहिकाहुमा ये कि वो डाल देगा उन दोनों को, फंसा देगा उन दोनों को, तुगयानम सरकशी में, व कुफरन और कुफर में। खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये जो लड़का था ना, बड़ा खूबसूरत लड़का था, इसके वालिदैन जो है वो मोमिन थे, और वालिदैन को जो है वो इस बच्चे से बड़ी मोहब्बत थी। तो हमें ये खतरा था, खशीना खशिये से है कि हमें ये डर था, ये ना हो कि जब ये बच्चा जवान हो तो वालिदैन को जो है वो कुफर पर मजबूर करे, तुगयानम व कुफरा। तो हमने इस बच्चे को जो है वो कत्ल कर दिया। अब जब बच्चा कत्ल किया तो जाहिर सी बात है इसका नेमुल बदल भी तो मिलना चाहिए ना, तो इसका नेमुल बदल जो है वो अगली आयत में आ रहा है। फरदना पस हमने इरादा किया, हमने चाहा, अयुब्दिलहुमा ये के बदले में दे उन दोनों को, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, खैरम मिन्हु इससे बेहतर, ज़कातन पाकीज़ा, व अक़रबा और ज्यादा करीब, रुहमा शफकत में, रहमत में। जी, तो हिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने इरादा किया, हमने चाहा कि अल्लाह ताला जो है वो इस लड़के के बदले इनको एक अच्छी नेक सालेह औलाद दे देगी, नेक सालेह औलाद जो है वो अता कर दी जाएगी। वो अक़रब रुहमा, रुहमा जो है वो रहम से है, सिला रहमी से भी हो सकता है ये, कि सिला रहमी में जो है वो लड़का ज़्यादा बेहतर होगा। व अम्मल जिदारु और रही वो दीवार, फकाना पस थी वो, ली गुलामैनी यतीमैनी दो यतीम लड़कों की, फिल मदीनती शहर में, वकाना और था, तख्ताहु इसके नीचे, कंजुन खजाना, लाहुमा उन दोनों का, वकाना और था, अबूहुमा बाप उन दोनों का, सालिहन नेक, फ़अरादा रब्बुका पस इरादा किया, पस चाहा तेरे रब ने, अन यबलुगा ये कि वो दोनों पहुंच जाएं, अशुद्दाहुमा अपनी जवानी को, व यस्तखरिजा और ये कि वो दोनों निकाल लें, कंजाहुमा अपना खजाना, रहमतन रहमत में, रब्बिका तेरे रब की तरफ से, वमा फ़अलतुहु और नहीं मैंने किया इसे, अन अमरी अपनी मर्जी से, ज़ालिका ये तावीलु ताबीर है, हकीकत है, मा लम तस्ती नहीं जिस पर तुम कर सके, अलैहि इस पर सब्रन सब्र। अच्छा, अब देखें, अमूमन हम जो है वो दुआ मांगते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि जी दुआ करें जी साडा बच्चा नेक निकल आए, हमारा बच्चा नेक हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो मामला थोड़ा सा उलट हमें नजर आ रहा है। देखें, दीवार के नीचे जो है वो खजाना था, और वो खजाना दो यतीम लड़कों का था, यानी माँ बाप बाप उनका फौत हो चुका था, और दीवार गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता, बच्चे अभी छोटे थे। तो हिजर अलैहिस्सलाम ने जो है वो दीवार पुख्ता करके खड़ी कर दी ताकि बच्चे जब जवान हो तो अपना खजाना वहां से निकाल ले। ये क्यों किया हिजर अलैहिस्सलाम ने? ये इसलिए किया, वकाना अबूहुमा सालिहन, उन दोनों का बाप नेक था। इसका मतलब ये हुआ कि वालिदैन अगर नेक हो तो औलाद को जो है वो दुनिया में भी भलाई मिलती है और आखिरत में भी इंशाल्लाह भलाई मिलेगी। तो ये ज़हन में रखिएगा। एक साहबी रसूल थे, वो तहज्जुद के वक्त जो है वो उठा करते थे और नमाज पढ़ा करते थे, और अपने बेटे की तरफ रुख करके कहा करते थे कि ए मेरे बेटे, ये तेरे लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। यानी वालिद को जो है वो नेक होना चाहिए। वालिद अगर नेक होगा तो बच्चों को दुनिया में भी रहमत मिलेगी, दुनिया में भी राहत मिलेगी और आखिरत में भी राहत मिलेगी। और ये आगे मैंने बता दिया, फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, कि जब वो बड़े हों तो खजाना निकाले, रहमतम मिन रब्बी, ये आपके रब की तरफ से रहमत है। और ये जितने भी काम इन्होंने किए हैं ना, ये आखिर में जो है वो डिस्क्लेमर एक दे दिया, वमा फ़अलतुहु अन अमरी। हिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ से है। ये जैसे अल्लाह मुझे हुक्म करते रहे वैसे मैं करता रहा हूँ, और ये तावील है उन तमाम बातों की जिस पर तुमने सब्र नहीं किया। अच्छा, अब पूरे इस वाकये में जो है बड़ी अहम बात यह है कि जो सेकंड पार्टी है हिजर अलैहिस्सलाम, उसका तो नाम मेंशन ही नहीं किया अल्लाह ताला ने।
उसकी क्या वजह है? जी, आर यू पीपल देयर? मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, पूरे वाक्य में आपने देखा, गौर किया, हिजर अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया। हिजर का कोई नाम अल्लाह ताला ने मेंशन नहीं किया। देखिए, असल में ये इसलिए बयान किया जा रहा है कि ये देखें अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत क्या है, उस पर फोकस रखा जा रहा है। जैसे मैंने सलमान अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया था, सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तख्त कौन लेके आएगा, तो तख्त जो है वो लेके आ गया था बंदा, तो उन्होंने क्या कहा था, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। तो इसी तरह यहाँ हिजर और मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये में जो है वो पार्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस जो है वो अल्लाह ताला की मशीयत है कि बाज़ का ये होता है कि हम इंसान हैं, बाज़ का ये होता है कि मामलात हमारे बिल्कुल जो है वो हमारी सोच समझ के बिल्कुल बरअक्स चलते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं होती, अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो एक परफेक्ट किस्म की प्लानिंग होती है। मैं एक किताब मैंने पढ़ी थी तफहीमात मौलाना मदूदी की, वहां एक औरत ने सवाल किया था कि जी एक छोटा बच्चा शदीद बुखार में मुब्तला है और अभी नाबालिग है, उसका ना कोई अमल जो है वो लिखा जा रहा है, बिल्कुल नाबालिग बच्चा और शदीद बुखार में वो तप रहा है और आखिर उसी बुखार में जो है वो करब की हालत में वो बच्चा जो है वो फोत हो गया। तो उस बच्चे का क्या कसूर? जी, बात समझ में आती है ना ये कि भाई उस बच्चे का क्या कसूर? तो मौलाना मदूदी ने जो है उसका जवाब ये दिया था कि देखें जी, अगर एक बाग हो ना, खूबसूरत सा बाग हो, उसमें जो है वो जो माली होता है ना, उसकी काट छांट करता रहता है। तो जब काट छांट करता है तो कुछ फूल और कुछ पौधे, कुछ पत्तियां जो है उसको काट देता है मालिक। माली जो है वो कुछ पत्तियां जब काट देगा तो उससे उस खूबसूरती, उस बाग की खूबसूरती में इजाफा होता है। लेकिन जो पत्ती या फूल कटा, उसका जो फैलो पत्ती या फूल, यानी उसके साथ वाला पत्ती या फूल, वो परेशान हो जाएगा, भाई इसका क्या कसूर, इसने इसको काट दिया गया। तो अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो एक प्लानिंग होती है, पूरा निजाम अल्लाह ताला के सामने है, हमारी तो हैसियत कोई नहीं है। तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। देखिए, अगर कोई परेशानी है, परेशानी आ गई है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है परेशानी, उस पर हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह की मशीयत यही है। हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो इससे कोई बेहतर जो है वो नेमुल बदल हमें दे दे। कोई ऐसा मसला है को हमें जो कोई चीज नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो चीज ना मिलना हमारे लिए बेहतर हो। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। तो अल्लाह ताला की मशीयत जो है उसको हमने समझने की कोशिश करनी है कि अल्लाह ने जो कुछ भी हमारे लिए लिख दिया है वो बेहतर लिखा होगा। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, ये चीज ज़हन में रखिएगा। इन तमाम मामलात में जो है वो अल्लाह ताला की मशीयत को जो है वो सामने रखा गया है। इवन के पार्टी का नाम नहीं बताया, हिजर अलैहिस्सलाम का नाम बताना भी अल्लाह ताला ने मुनासिब नहीं समझा कि भाई नाम को छोड़ो, काम देखो कि काम क्या हो रहा है, मशीयत मेरी क्या है, मेरी मशीयत किस तरह काम करती है। तो हमें जो है वो अल्लाह ताला के साथ जो है वो अपना ताल्लुक, राब्ता कायम रखना चाहिए। चाहे अगर हम कोई चीज मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, हो सकता है कि इसमें बहुत बेहतरी हो, तो अगर वो चीज मिल जाए तो वो गल पड़ जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो है वो रिलेटिव में जो है वो एक जो है ना वो खातून है, वो रो रो के दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह फलां फलां बेटी नू, फलां बच्ची नू मेरी नो बना दे। यकीन करें, हाथ उठा उठा के रात को वो दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह फलां बेटी को मेरी बहू बना दे। अब वो बहू बन गई, उसकी दुआ कबूल हो गई। अब बहू बन गई, अब वो जो है वो दिन में भी तारे दिखा रही उसको। अब वो दुआ मांग रही, या अल्लाह किसी तरीके ना को छुटकारा से मिल जावे। तो बात फॉलो कर रहे हैं हम कि किस तरह जो है वो हमें नहीं पता होता कि हमारे आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम एंड करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं।